ਹੈਲੋ ਬੇਟਾ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੂਗਲ ਫਾਰਮ ਦਾ ਲਿੰਕ ਸੀ। ਉਸ ਲਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਘਣ ਅਤੇ ਘਣਮੂਲ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਪੈਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੁਇਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤਾ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨਾ ਹੁਣ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਵੀ ਗਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਉਹ ਫਾਰਮ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੂਗਲ ਫਾਰਮ ਦਾ ਲਿੰਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਚਲੋ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਇਟ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। 1 8 27 64 ਹੈ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਊਗਾ ਦੇਖੋ। 1 ਕੀ ਹੈ? 1 ਦਾ ਘਣ ਹੈ ਨਾ, 1 ਦਾ ਘਣ 1। 8 ਕੀ ਹੈ? 2 ਦਾ ਘਣ। 2 ਦਾ ਘਣ ਮਤਲਬ 2 ਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। 2 ਦੂਏ 4 ਦੂਏ 8। 27 ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? 3 ਦਾ ਘਣ 3 ਤੇ 9 9 ਤੀਆ 27। 64 ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? 4 ਦਾ ਘਣ 4 ਚੌਕੇ 16 ਚੌਕੀ 64। 5 ਦਾ ਘਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ? 125। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਊਗਾ ਨੈਕਸਟ ਨੰਬਰ 125। ਓਕੇ ਬੱਚੇ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿਊਬ ਆਫ 8। 8 ਦਾ ਘਣ। 8 ਦਾ ਘਣ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 8 ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ 3 ਵਾਰ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। 8 ਦਾ ਘਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 512। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਊਬ ਆਫ ਈਵਨ ਨੰਬਰ, ਮਤਲਬ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਘਣ ਡੈਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੇਟਾ? ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, 2 4 6 ਹੈ ਨਾ, ਡੈਸ਼ ਡੈਸ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਅਣਗਿਣਤ। ਅਤੇ ਹੁਣ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਘਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਸਤ, ਟਾਂਕ, ਅਭਾਜ ਜਾਂ ਭਾਜ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਘਣ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ 2 ਦੇ ਘਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 2 ਦਾ ਘਣ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 8। 4 ਦਾ ਘਣ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 64 ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ 6 ਦਾ ਘਣ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 216 ਹੈ ਨਾ ਬੱਚੇ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। 8 ਦਾ ਘਣ 512, 10 ਦਾ ਘਣ 1000 ਹੈ ਨਾ, 12 ਦਾ ਘਣ 1728, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਣ ਵੀ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆ ਹੀ ਹੈ। 2 ਦਾ ਘਣ 8, 2 ਜਿਸਤ 8 ਜਿਸਤ, 4 ਜਿਸਤ 64 ਜਿਸਤ, 6 ਜਿਸਤ 216 ਜਿਸਤ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਗੇ 8 ਵੀ ਜਿਸਤ ਹੈ ਅਤੇ 512 ਵੀ ਜਿਸਤ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਘਣ ਜਿਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਠੀਕ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿਊਬ ਆਫ ਔਡ ਨੰਬਰਸ, ਮਤਲਬ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਘਣ। ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, 1 3 5 ਹੈ ਨਾ, 1 3 5 7 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। 1 ਦਾ ਘਣ 1, 3 ਦਾ ਘਣ 27 ਹੈ ਨਾ ਬੱਚੇ, 5 ਦਾ ਘਣ 125, 7 ਦਾ ਘਣ 343 ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜੇ ਇੱਕ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਘਣ 1, ਉਹ ਵੀ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਜੇ 3 ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਘਣ 27 ਵੀ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਜੇ 5 ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਘਣ 125 ਵੀ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਘਣ ਵੀ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣਿਆ ਕਿ ਕਿਊਬ ਆਫ ਔਡ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਔਡ, ਮਤਲਬ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਘਣ ਟਾਂਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। 1 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖੀਏ ਬੇਟਾ? 1 ਦੀ ਘਾਤ 3। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ 1 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਸੀ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ? 3 ਅਤੇ 5, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ? 8। 3 ਅਤੇ 5 8। 8 ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 2 ਦਾ ਘਣ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ 7 9 11, 5 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ 7, ਫਿਰ 9, ਫਿਰ 11। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 'ਚ ਆਪਾਂ 1 ਨੰਬਰ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ 'ਚ ਆਪਾਂ 2 ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਅਗਲੀਆਂ 2। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀਆਂ 3 ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ 3 ਦਾ ਘਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਰੀ ਅਗਲੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 4 ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? 13 15 17 19, ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? 4 ਦਾ ਘਣ। 4 ਦਾ ਘਣ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 4 ਦੀ ਘਾਤ 3, 4 ਚੌਕੇ 16, 16 ਚੌਕੀ 64। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਇਆ? ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ 64 ਬਰਾਬਰ 4 ਦੀ ਘਾਤ
3। ओके बेटा, रिपीट कर रही हाँ, एक संख्या सी 1 दी घात 3, अगे उस तो अगलियां दो टांक संख्यावां लै लियां 3 ते 5, उन्हां दा जोड़ 8, वो की होया 2 दी घात 3। फिर अगे 3 संख्यावां लै ली, वो 3 दी घात 3, फिर अगलियां 3 टांक संख्यावां लै ली, वो 4 दी घात 3, मतलब 64। ओके बेटा, हुण आपां नैक्सट क्वेश्चन ते चलदे हां कि 4 पूर्ण घन नहीं है, 4 पूर्ण घन नहीं है, वो छोटी तो छोटी संख्या दसो जिस दे नाल 4 नूं गुणा करन ते पूर्ण घन बन जाए। देखो बेटा 4 पूर्ण घन नहीं है, क्यों नहीं है, आपां जदों इहदे गुणनखंड बनाने आ ते अपने कोल इहदे गुणनखंड आए 2 गुणा 2, है ना। घन बनाने वास्ते 3 होने जरूरी है ना, 2 का 3 वार आना जरूरी सी, बट अपने को 2 की सी 2 वारी सी। ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ ਨੂੰ किस रकम नाल गुणा करनी चाहिए है कि पूर्ण घन बन जे, 2 नाल गुणा करनी चाहिए है। ओके बेटा, जे आपां मान लो इत्थे 1 2 नाल होर मल्टीप्लाई कर दिए, हुण की बनूगा बेटा, जे अपने को संख्या किहड़ी बन जाएगी, 2 दूए 4 दूए 8, 8 एक पूर्ण घन हुंदा है, आपां नूं पता ही है 8 पूर्ण घन है। ठीक है, तो यदा मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होया कि जे आपां 2 नाल 4 नूं गुणा करदे हां ते पूर्ण घन बन जाएगा, इसलिए इहदा ए ऑप्शन ठीक आंसर है। नेक्स्ट है 54 इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच वी डिवाइड द नंबर 54 टू गेट अ कंप्लीट क्यूब। 54 पूर्ण घन नहीं है, वो छोटी तो छोटी संख्या दसो जिस दे नाल भाग करन ते पूर्ण घन बन जाए। हुण बेटा आपां उस तरह करांगे, 54 दा आपां अभाज गुणनखंड पता करते हैं। ठीक है, पहला तो 2 ते जाऊगा, है ना बेटा, 27 आ गया, फिर आपां इनू 3 ते करांगे, 9 आ गया, फिर 3 ते करांगे 3, है ना, फिर 3। ठीक है बेटा, हुण इहदे गुणनखंड देखो, 2 आ रहा है तो 3 तो 3 बार आ रहा है बेटा। 2 हुण इदां दी रकम है जिहड़ी कल्ली है ना, तो आपां भाग करनी है, भाग करनी है इनू पूर्ण घन बनाने वास्ते। हुण इहदे नाल 2 दे नाल तां पूर्ण घन बन नहीं सकता, है ना, तो यदा मतलब आपां की करांगे, हुण 2 नाल इनू भाग करांगे, किनू 54 नूं भाग करांगे 2 नाल कि अपने कोल पूर्ण घन आ जाए। ठीक है, 54 नूं 2 नाल भाग करन ते आपां नूं पूर्ण घन प्राप्त हुंदा है, इसलिए इहदा आंसर सी ऑप्शन जो कि 2 है वो ठीक है। नेक्स्ट है 1729 स्मॉलेस्ट हार्डी रामानुजन नंबर है, इसनूं किस तरीके नाल नहीं लिखा जा सकता। बेटा 1729, देखो 1729 नूं आपां 12 दी घात 3 ते 1 दी घात 3 का जोड़ करके लिख सकते हैं, क्योंकि 12 दी घात 3 कितना हुंदा 1728 प्लस 1 दी घात 3 कितना हुंदा 1, कितना बन गया 1729 बन गया ना। हुण जे आपां नैक्सट ऑप्शन ते चलीए, 10 दी घात 3 मतलब 10 का घन कितना हुंदा 1000, 9 का घन कितना हुंदा 729, हुण जोड़ांगे 1729 बन गया, है ना बेटा। जे आपां नैक्सट ऑप्शन ते जाइए, 40 का घन 40 का वर्ग की है 1600 ते 9 का घन की है 729, हुण नहीं बनूगा, है ना। तो वैसे भी बेटा रामानुजन जिहड़ा नंबर है 1729 हार्डी रामानुजन नंबर 1729 वो यही सीगा कि इन्हां नूं होर 2 नंबरां दे घन दे जोड़ दे रूप विच लिखिया जा सकता है। हार्डी रामानुजन नंबर नूं उन्हां दी विशेषता बेटा करैक्टरिस्टिक ही यही सी उस नंबर दी कि उन्हां नूं कोई होर 2 संख्यावां दे घन दे जोड़ दे रूप विच लिखिया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए यदा ऑप्शन सी ठीक नहीं है। ठीक है बेटा, नैक्सट है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 64, 64 का घनमूल पता करो। 64 का घनमूल बेटा कितना हुंदा है, आपां नूं पता ही है, 4 नूं आपां 3 बार गुणा करते हैं तो अपने कोल 64 आंदा है, तो यदा मतलब 64 का घनमूल कितना हो गया, 64 के गुणनखंड आपां बनावांगे बेटा, की बननगे बेटा, 2 आएगा बेटा अपने कोल 6 बार, 2 दूए 4 दूए 8, 8 दूए 16, 16 दूआ 32, 32 दूआ 64, है ना। तो ये 1 2 इत्थों बाहर आऊगा तो 1 2 इत्थों बाहर आऊगा, है ना बच्चे। तो की आया आंसर अपने कोल 2 दूए 4। ठीक है बच्चे, तो यदा मतलब 64 का घनमूल कितना हो गया 4। ओके, नैक्सट देखो, एक पासे बेटा आपां नूं क्यूब दे रखे तो दूसरी साइड आपां नूं क्यूब रूट्स दे रखे हैं।
हुण आपां ये दसना है, आपां मैच करना है बेटा, इन्हां दा मिलान करना है। 7 का वर्ग बेटा की हुंदा है, 7 का घन की हुंदा है बेटा, 7 का घन है 343, 7 का घन 343, 11 का घन 1331, 10 का घन 1000, 9 का घन 729, 8 का घन कितना है बेटा, 8 का घन है 512। ठीक है बच्चे, नैक्सट क्वेश्चन ते चलते हैं। फाइंड द परफेक्ट क्यूब फ्रॉम गिवन बिलो। परफेक्ट क्यूब बेटा पता करनी है कि इस चो परफेक्ट क्यूब केड़ी है। बेटा ये देखो फर्स्ट नंबर है 100, 100 तो बेटा परफेक्ट क्यूब हो नहीं सकता, क्योंकि जे जीरोज़ के नाल क्यूब बनना है तो 3 जीरोज़ होनियां जरूरी ने। ठीक है, 3 ਜਾਂ 6, तो यदा मतलब ये ऑप्शन तो खत्म है। 128 होंदा ही नहीं है बेटा, क्योंकि जदों आपां घन शुरू करते 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का 64, 5 का 125 है ना, 6 का 216, 128 आंदा ही नहीं, ना 16 आंदा, तो बेटा 8 आपां नूं पता है 8 का घन 512 होंदा है, इसलिए 512 पूर्ण घन है। नैक्सट देखो बेटा, हेठ लिखियां विचों किहड़ा कथन सच है। एक पूर्ण घन 3 सिफरां ते खत्म हो सकता है। आपां हुणे ही कहा कि जे पूर्ण घन होएगा तो जे एंड च सिफरां होणगियां तो 3 सिफरां होणियां जरूरीआं ने। ठीक है, 3 दे मल्टीपल च देयर इज़ नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8, कि इस तरह का कोई भी पूर्ण घन नहीं है जो 8 ते खत्म हुंदा है। हैगे बेटा, पहले नंबर ते तां आपां 8 ही लै लैने आ। 2 का घन जो होंदा है वो 8 ते ही खत्म हो रहा है ना, बेशक इक्को ही अंक है पर खत्म तो 8 ते ही हो रहा है ना। उस तो बाद आप 12 ते चलते हैं, 12 का घन कितना होंदा 1728, वो भी तो 8 ते खत्म हो रहा है ना बच्चे। ਇਹਦਾ मतलब बी ऑप्शन ठीक नहीं है। नैक्सट चलते हैं बेटा, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी 3 डिजिट नंबर। क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर बेटा आप सब तो छोटा 2 डिजिट नंबर लैने 10, 10 आप लैके चलते हैं। कितना होंदा 10 का घन, 10 का घन कितना होंदा बेटा, 10 का घन होंदा है 1000। किन्ने डिजिट्स हो गए 4 है ना। सब तो छोटे घन दे भी, सब तो छोटी संख्या के घन दे भी डिजिट्स 4 ने। ਇਹਦਾ मतलब ये ऑप्शन भी अपने को ठीक नहीं है। आप नैक्सट से चलते हैं। क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर इज़ ऑलवेज अ सिंगल डिजिट नंबर। एक अंक वाली संख्या का घन हमेशा एक अंक वाली संख्या ही होंदी है, नहीं होंदी बेटा, हमेशा नहीं होंदी। आप ये कह सकते हैं 1 का घन जिवें हुंदा 1 है ना, 2 का घन हुंदा 8, एक अंक वाली ही आ गई। 3 का घन हुंदा कितना 27, हुण एक अंक वाली नहीं आई ना। ਇਹਦਾ मतलब कि ਇਹਦਾ डी ऑप्शन भी ठीक नहीं है, तो ਇਹਦਾ फर्स्ट ऑप्शन ही ठीक होएगा। फर्स्ट ऑप्शन की सी कि एक पूर्ण घन 3 सिफरां ते खत्म हो सकता है, आपां उस ते निशान लाता। ठीक है बेटा, हुण एक बार आपां चैक करांगे कि आपां सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर चुके हैं बेटा। आपां देखो सारे क्वेश्चनस ਇਹਦੇ कर चुके हैं। तुसी भी बेटा सारे क्वेश्चनस करन तो बाद पैस टैसट दे विच भी बेटा जदों तुहाडा टैसट होएगा जरूरी बनाओ इस चीज़ नूं कि तुसी सारे क्वेश्चनस रीचैक करने हैं। एक तो ये चैक करना है कि तुसी कीते हैं या नहीं कीते हैं, कोई रह तो नहीं गया। एक ये चैक करना है कि आंसर्स ठीक लाए हैं तुसी टिक। कई बार आप गलती नाल बेटा कोई होर निशान ला जाने, आप लाना कुछ होर हुंदा है ना। तो तुसी इन्हां सारियां गल्लां दा ध्यान रख के ही बेटा पैस टैसट देना है। ये सारे क्वेश्चनस बेटा तुहाडी प्रैक्टिस लई ही करवाए जा रहे हैं, ताकि तुहाडी वध तो वध प्रैक्टिस होए। ठीक है बेटा, तो तुसी इसनूं ध्यान नाल सुनना है। ओके बच्चे, हुण आपां सबमिट करके देखते हैं, तो आपां सबमिट करते हैं, तो इदां अपने सारे क्वेश्चनस के आंसर्स ठीक ने। ओके बच्चे, तो तुसी भी बेटा ध्यान नाल अपने क्वेश्चनस करने हैं। ओके बेटा।